اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی سمیت شبلی فراز، فاروق حبیب اور حسان نیازی اور دیگر رہنماؤں کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ تمام ملزمان کو 19 جولائی کو ذاتی حیثیت میں طلب بھی کر لیا۔ تھانہ گولرا میں درج ایک مقدمے میں وارنٹ گرفتاری جاری کی ہے۔ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کا 3 ارب ڈالر کا قرض منظور کر لیا۔ عالمی مالیاتی فنڈ کے ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے ساتھ اسٹینڈ بائی معاہدے کی منظوری دے دی، جس کے بعد فوری طور پر 1.2 ارب ڈالر کی پاکستان کو جاری کر دی جائے گی۔ اعلامیے کے مطابق اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت پاکستان کو اگلے 9 ماہ میں 3 ارب ڈالر ملیں گے۔ پاکستان کو عالمی مالیاتی فنڈ نے پاکستان کی معاشی کارکردگی سے متعلق رپورٹ جاری کر دی۔ سال 2023 سے 24 میں معاشی شرح نمو 2.5% رہنے کا امکان ہے۔ آئی ایم ایف کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ مالی سال پاکستان کی معاشی کارکردگی منفی 0.5% رہی۔ حکومت نے گزشتہ سال جی ڈی پی گروتھ 0.3% مثبت رہنے کا دعویٰ کیا تھا۔ آئی ایم ایف کا اپنی رپورٹ میں کہنا ہے کہ سال 2024 میں بے روزگاری 8.5% سے کم ہو کر 8% پر آ جائے گی۔ وزیر اعظم سے بادشاہ کا دورہ ملتان۔ وزیر اعظم کا زیر سمیت سالسو کا دورہ۔ وزیر اعظم بہاولپور یونیورسٹی ملتان میں جائیں گے، جہاں وہ یوز لون اور لیپ ٹاپ تقسیم کریں گے۔ شہباز شریف بہاولپور یونیورسٹی ملتان سے تقریر کرتے ہوئے کہیں گے کہ وزیر اعظم کے ہمراہ اور وفاقی وزراء اور ملتان کی چیئرمین پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ نے دھاندلی سے اقتدار پر بٹھایا۔ 9 مئی ملک کی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا۔ ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد شاہین چوک فلائی اوور کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب۔ کہا کہ عوامی ترقی کے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بارہ فلائی اوور کا تعلق پنڈی اسلام آباد کی نہیں، پورے پاکستان سے ہے۔ اسی ماہ کے اختتام پر بارہ فلائی اوور کا افتتاح ہوگا۔ آئی ایم ایف سے قرض کی منظوری کے بعد روپے کی قدر میں بہتری آنے لگی، جبکہ ڈالر اپنی قدر کھونے لگا۔ کاروباری ہفتے کے چوتھ بینک میں ڈالر کی قیمت میں 2 روپے اور 80 پیسے کی کمی دیکھی گئی، جس کے بعد انٹر بینک میں امریکی کرنسی 275 روپے 10 پیسے پر ٹریڈ کر رہی۔ گزشتہ روز کاروباری ہندوستان پر انٹر بینک میں ڈالر 270 روپے اور 40 پیسے پر بند ہوا تھا۔ بھارتی آبی جارحیت جاری ہے۔ گنڈا سنگھ والا میں درجنوں دیہات سیریاب آ گئے۔ دیہاتی اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ علاقوں کا رخ کرنے لگے۔ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں دریائے ستلج گنڈا سنگھ والا میں درمیانے سے اونچے درجے کا سیلاب متوقع ہے۔ بھارت سے آنے والا 1,85,000 کیوسیک کا سیلابی ریلا جسر سے شاہدرہ لاہور کی جانب بڑھ رہا ہے۔ سیلابی پانی سے راوی کنارے شکر گڑھ کے سرحدی علاقوں میں فصلوں کو نقصان پہنچا۔ آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم شہدائے کشمیر منایا جا رہا ہے۔ 13 جولائی 1937 کو ڈوگرا فوجی نے اذان دینے پر فائرنگ سے 22 مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا۔ 13 جولائی کو مقبوضہ کشمیر اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں 1931 کے ظالمانہ واقعے کی یاد میں یوم شہدائے کشمیر منایا گیا۔ اس روز مظاہرین عبدالقدیر کے خلاف ناجائز سیاسی کرنے کی سماعت کا موقع پر اکٹھے ہوئے تھے، جو اس وقت مظاہرین کے اذان دینے پر پولیس نے گولی مار کر اور ان کو شہید کر دیا۔ اور مغربی ہوائیں ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہو گئی۔ مونسون بارشوں کا دوسرا اسپیل برسنے کو تیار ہے۔ محکمہ موسمیات نے 13 سے 17 جولائی تک مونسون بارشوں کی پیش گوئی کی اور اس حوالے سے الرٹ بھی جاری کر دیا گیا۔ آئندہ چند روز تک پنجاب کا موسم بہتر ہونے کا امکان۔ مونسون بارشوں کے دوسرے اسپیل سے گرمی کی شدت میں کمی ہوگی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں 20 سے 21 جولائی کے بعد تیز بارش کی پیش گوئی۔
अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हुसैन हैदर। और मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बकायदा आगाज मजीद शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। कैनन स्नोफॉल रूम कूलर ठंड पाले। कैनन होम अप्लायंसेस चले साल हसाल, कारकर्दगी बेमिसाल। वेलकम बैक। बुलेटिन का बकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई समेत शिबली फराज, फरूख हबीब और हसान न्याजी और दीगर रहनुमाओं के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। तमाम मुल्जिमान को 19 जुलाई को जाती हैसियत में तलब भी किया गया है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पर हमले के इल्जाम में इस्लामाबाद के थाना रमना के 2 और थाना गोल्डरा में दर्ज एक मुकदमे में वारंट गिरफ्तारी जारी किए। दौरान इस्तेमाल चेयरमैन पीटीआई के वकला की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की गई। वकील का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई ने लाहौर हाई कोर्ट में पेश होना है। लाहौर हाई कोर्ट में पेशी के बायस साबिक वज़ीर आज़म इस्लामाबाद नहीं आ सकते। जज अब्बू अल एहसनात ने रिमार्क दिए कि चेयरमैन पीटीआई को अदालत पेश होना पड़ेगा। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई समेत तमाम मुल्जिमान को 19 जुलाई को जाती हैसियत में तलब करके केस की समाअत 19 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। आपको इस हवाले से अपडेट करते चलेंगे। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई समेत शिबली फराज, फरूख हबीब और हसान न्याजी दीगर रहनुमाओं के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। तमाम मुल्ज़िमान को 19 जुलाई को जाती हैसियत में भी तलब कर लिया गया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पर हमले के इल्जाम में इस्लामाबाद के थाना रमना के 2 और थाना गोल्डा में दर्ज एक मुकदमे में वारंट गिरफ्तारी जारी किए। दौरान समाज चेयरमैन पीटीआई के वकला की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई। वकील का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई ने लाहौर हाई कोर्ट में पेश होना है। लाहौर हाई कोर्ट में पेशी के बायस साबिक वजीर आजम इस्लामाबाद नहीं आ सकते। जज अबुल हसनात ने रिमार्क्स दिए कि चेयरमैन पीटीआई को अदालत पेश होना पड़ेगा। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई समेत तमाम मुल्ज़िमान को 19 जुलाई को जाती हैसियत में तलब करके केस की समाअत को 19 जुलाई तक मुलतवी कर दिया। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई समेत शिबली फराज, फरूख हबीब और हसान न्याजी और दीगर रहनुमाओं के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। तमाम मुल्जिमान को 19 जुलाई को जाती हैसियत में तलब भी कर लिया है। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी केस की समाअत आज फिर होगी। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर केस की समाअत करेंगे। अदालत ने 2 गवाहों को आज बयानात रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर रखा है। चेयरमैन पीटीआई पर तोशाखाना केस में पहले ही फर्द जुर्म आयद हो चुकी। गुज़िश्ता रोज होने वाली समाअत में अदालत ने तोशाखाना फौजदारी केस में चेयरमैन पीटीआई की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर करते हुए हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त का फैसला अदालत में जमा करवाने की हिदायत करती है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी केस की समाअत आज फिर होगी। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर केस की खुद समाअत करेंगे। अदालत ने 2 गवाहों को आज बयानात रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर रखा है। चेयरमैन पीटीआई पर तोशाखाना केस में पहले ही फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। गुज़िश्ता रोज होने वाली समाअत में अदालत ने तोशाखाना फौजदारी केस में चेयरमैन पीटीआई की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर करते हुए हाई कोर्ट में दायर दरखास्त का फैसला अदालत में जमा कराने की हिदायत की थी। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ
توشہ خانہ فوجداری کیس کی سماعت آج پھر ہوگی۔ اسلام آباد ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے جج ہمایوں دلاور کیس کی سماعت کریں گے۔ عدالت نے 2 گواہوں کو آج بیانات ریکارڈ کرانے کے لیے طلب کر رکھا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی پر توشہ خانہ کیس میں پہلے ہی فرد جرم عائد ہو چکی ہے۔ گزشتہ روز ہونے والی سماعت میں عدالت نے توشہ خانہ فوجداری کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کرتے ہوئے ہائی کورٹ میں دائر درخواست کا فیصلہ عدالت میں جمع کرانے کی ہدایت کی تھی۔ اور اب کچھ بات کریں آئی ایم ایف کی، تو آئی ایم ایف نے پاکستان کی معاشی کارکردگی سے متعلق رپورٹ جاری کر دی ہے، جس کے مطابق سال 2023 سے 24 میں معاشی شرح نمو 2.5% رہنے کا امکان ہے۔ آئی ایم ایف کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ مالی سال پاکستان کی معاشی کارکردگی منفی 0.5% رہی۔ حکومت نے گزشتہ سال جی ڈی پی گروتھ 0.3% مثبت رہنے کا دعویٰ کیا تھا۔ آئی ایم ایف کا اپنی رپورٹ میں کہنا ہے کہ سال 2024 میں بے روزگاری 8.5% سے کم ہو کر 8% پر آ جائے گی، جبکہ اس سال اوسط مہنگائی 29.6% سے کم ہو کر 25.9% پر آنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ جی بالکل، رپورٹ کے مطابق اس سال مالی خسارہ معمولی کمی سے 7.5% رہنے کا امکان ہے۔ آئی ایم ایف رپورٹ کے مطابق پرائمری سرپلس جی ڈی پی کا 0.4% رہنے کا تخمینہ لگایا ہے۔ پاکستان کے جمع قرضوں کا حجم 81.8% سے کم ہو کر 74.9% پر آ جائے گا۔ ڈالر کے احوال آپ کو بتائیں کہ آئی ایم ایف سے قرض کی منظوری کے بعد روپے کی قدر میں بہتری آنے لگی، جبکہ ڈالر اپنی قدر کھونے لگا ہے۔ کاروباری ہفتے کے چوتھے روز انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 1.48 کی واضح کمی دیکھی گئی ہے، جس کے بعد انٹر بینک میں امریکی کرنسی 276 روپے پر ٹریڈ کر رہی ہے۔ گزشتہ روز کاروباری دن کے اختتام پر انٹر بینک میں ڈالر 277 روپے 48 پیسے پر بند ہوا تھا۔ دوسری جانب پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بھی کاروبار کے دوران مثبت رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 367 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 100 انڈیکس 45,882 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ وہیں دوسری جانب آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینا جورجیو کا کہنا ہے کہ پاکستان کو اس پروگرام پر پوری لگن سے عمل کرنا ہوگا۔ ماضی میں قرض پروگرام کی پالیسیوں پر عمل درآمد نہ ہونے سے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے۔ ایک بیان میں ایم ڈی آئی ایم ایف کا کہنا تھا کہ قرض پروگرام کی پالیسیوں پر عمل نہ ہونے کے باعث پاکستان کے اندرونی اور بیرونی مالی ذخائر میں کمی آئی۔ پالیسیوں پر تسلسل سے عمل درآمد کے ذریعے عدم توازن دور ہوگا۔ کرسٹالینا جورجیوا کا کہنا ہے کہ نیا اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرام پاکستان کے لیے میکرو اکانومک استحکام لانے کا موقع ہے۔ ایم جی آئی ایم ایف نے بجلی کی قیمت اور لاگت میں توازن لانے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو توانائی کے شعبے میں اصلاحات کی ضرورت ہے۔ پاور سیکٹر میں ٹارگیٹڈ سبسڈی بہتر بنانے کی بھی ضرورت ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ کوشش ہے کہ موجودہ حکومت کی مدت پوری ہونے تک ملک میں زیر مبادلہ کے ذخائر 14 سے 15 ارب ڈالر کے درمیان ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ بینک کے پاس موجود ذخائر 9 سے 10 ارب ڈالر کے درمیان ہونے چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے چیزیں درست سمت میں جا رہی ہیں۔ جی بالکل، آئی ایم ایف معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کا سوچنا بھی زیادتی ہوگی۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پچھلی حکومت کی طرف سے آئی ایم ایف معاہدے کی خلاف ورزی کی قیمت ملک میں ادا کی ہے۔ کوئی وجہ نہیں کہ نگران حکومت آئی ایم ایف کا پروگرام کامیابی سے مکمل نہ کر سکے۔
اور اب خبر شامل کریں گلگت بلتستان سے، جہاں نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب آج ہوگا۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے عہدے کے لیے پاکستان تحریک انصاف فارورڈ بلاک کے حاجی گلبر خان کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ وزارت اعلیٰ کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے والے پی جی آئی ہم خیال گروپ کے 3 ارکان نے رات کے انتخاب کا بائیکاٹ کر دیا۔ وزیر اعلیٰ کا انتخاب کچھ ہی دیر بعد ہوگا۔ جی بی اسمبلی میں پی ٹی آئی ہم خیال گروپ نے کہا کہ اسمبلی میں اکثریت کو زبردستی اقلیت میں تبدیل کر دیا گیا۔ جی بالکل، آپ کو بتائیں کہ گلگت بلتستان کے نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب آج ہوگا۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے عہدے کے لیے پاکستان تحریک انصاف فارورڈ بلاک کے حاجی گلبر خان کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ وزارت اعلیٰ کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے والے پی ٹی آئی ہم خیال گروپ کے 3 ارکان نے رات کے انتخاب کا بائیکاٹ کر دیا۔ وزیر اعلیٰ کا انتخاب کچھ ہی دیر بعد ہوگا۔ بھارت کی جانب سے دریائے ستلج میں پانی چھوڑے جانے کے بعد گنڈا سنگھ والا میں درجنوں دیہات زیر آب آ چکے ہیں۔ دیہاتی اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ علاقوں کا رخ کرنے لگے۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر درمیانی درجے کا سیلاب ہے۔ پاکستان کی آمد 1,14,260 کیوسک تک پہنچ چکے۔ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں دریائے ستلج گنڈا سنگھ والا میں اونچے درجے کا سیلاب متوقع۔ جی بالکل ناظرین، سیلابی صورتحال ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے بھکی والا، مستے کی، فتح والی، ماہی والا اور چندہ سنگھ کے دیہاتوں میں بھی ریسکیو کیمپس قائم کر دیے گئے ہیں۔ قصور کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 211 افسران اور اہلکار ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ پی جی ایم اے کے مطابق ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر پانی کی آمد 62,118 اور اخراج 62,118 ہے۔ سیلابی پانی سے قصور اور اوکاڑا سمیت متعدد دیہات زیر آب آئے ہیں۔ دریائے ستلج میں پاک پتن کے مقام پر بھی درمیانی سطح کے سیلابی ریلے کا الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ دریا میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس کے باعث قریبی آبادیاں خالی کرا لی گئی ہیں۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سیلابی صورتحال کے ممکنہ اقدامات کے لیے ریلیف کیمپ قائم کر دیے ہیں۔ مشینری اور بوٹس کے ساتھ ریسکیو عملہ موجود ہے۔ متعلقہ محکموں کو 24 گھنٹے ڈیوٹی پر الرٹ رہنے کی احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ انسانی جانوں کو بچانے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ خبر شامل کریں گے قصور سے، جہاں دریائے ستلج میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے۔ گزشتہ روز کی نسبت آج پانی کی سطح مزید 1 فٹ تک بلند ہو گئی۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹ دے رہے ہیں نمائندہ قصور میاں کاشف، جو اس وقت دریائے ستلج پر ہی موجود ہیں۔ جی میاں کاشف، بتائیے گا کیا صورتحال ہے دریا کی؟ پر پتن کے مقام پر موجود ہوں۔ گزشتہ روز بھی ہم نے آپ کو یہاں سے پتن سے ہی جو ہے یہاں کے مناظر دکھائے کہ پانی کی کیا صورتحال ہے، اور اگر آج کی بات کی جائے تو آج جو ہے وہ پانی کی سطح مسلسل جو ہے وہ بلند ہو رہی ہے، اور گزشتہ روز کی نسبت آج جو ہے وہ پانی کی سطح 1 فٹ تک جو ہے وہ مزید بلند ہوئی ہے، جس کے بعد جو ہے ہر طرف آپ دیکھ سکتے ہیں میرے عقب میں کہ پانی ہی پانی جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس حوالے سے جو ہے وہ مستے کی گاؤں ہے، گٹی کلنجر کا گاؤں ہے، وہ مکمل طور پر جو ہیں وہ زیر آب آ چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر درجنوں دیہات جو ہیں جن میں دھوپ سڑی ہے، مبو کی ہے، دونا ہے، ان کے زمینی رابطے جو ہیں وہ منقطع ہیں۔ لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں تک ہی محصور ہو کے رہ گئے ہیں، جبکہ دوسری جانب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو لوگ جو ہیں مستے کی اور گٹی کلنجر اور دیگر دیہاتوں سے جو ہے وہ نقل مکانی کر کے آ رہے ہیں، تو وہ ان کے لیے جو ہے وہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے کوئی بھی جو ہے وہ رہائش کے انتظامات نہیں کیے گئے ہیں، ان کے کھانے کے کوئی انتظام نہیں کیے گئے ہیں۔ وہ لوگ جو ہیں وہ کھلے آسمان تلے ہی جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ جبکہ دوسری جانب میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پانی کی سطح جیسے جیسے بلند ہوتی جا رہی ہے ویسے ہی جو ہے وہ خطرناک سے خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ لوگوں کی تمام اس حوالے سے تمام جو فصلیں ہیں وہ مکمل طور پر جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو چکی ہیں۔ جبکہ اس حوالے سے یہاں پر جو ہم رہائشیوں سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر جانوروں کے لیے چارہ تک جو ہے وہ موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کو شدید مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اس حوالے سے پانی کی سطح مزید جو ہے وہ بلند سے بلند ہوتی جا رہی ہے، اور بھارت مسلسل جو ہے وہ آبی جاریت کا جو ہے وہ مظاہرہ کر رہا ہے۔ جی
जी शुक्रिया। मैं इस वक्त कसूर दरिया बहावलपुर में भी दरिया सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने लगा। गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह 21.60% हो गई। एट गंडा सिंह वाला के पानी का अखराज 1,06,620 क्यूसिक पर जा पहुंचा। एट सुलेमान की पर पानी की आमद और अखराज 62,118 क्यूसिक हो गया। जिला इंतजामिया की जानिब से दरियाई बेल्ट में फ्लड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इंतजामिया ने दरियाई बेल्ट के मकीनों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने के लिए ऐलानात जारी किए हैं। डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार अहमद भून ने बताया कि मुतासरीन के लिए 18 इमदादी रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं। रेस्क्यू 1122 की खतरनाक मकामात पर 8 पोस्टें 24 घंटे काम करेंगी। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए जिले इंतजामिया रेस्क्यू इदारे अलर्ट हैं। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए कोहिनूर न्यूज के साथ। ठीक है, वेलकम बैक। आपको बताएं कि अब कुछ मौसम की सूरत हाल। तो मुल्क में आज से मानसून बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई की गई है, जिसके तहत 17 जुलाई तक इस्लामाबाद समेत गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध के चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई की गई है, जिसके बाद PGMA ने बारिशों और तेज हवाओं के पेश नजर जिला इंतजामिया को पेशी इकदाम की हिदायत की है। शदीद बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी का और वलाई अजला में लैंड स्लाइडिंग का खदशा भी जाहिर किया गया है। सहराए सहारा से आने वाले एंटी साइक्लोन सिस्टम सरबेरस के असरात से यूरोप के शहरी बिलबिला उठे। गैर मुल्की खबर इदारे के मुताबिक सरबेरस से यूरोप में शदीद गर्मी की लहर दौड़ने लगी, जिसने सियाहों को बेहाल कर दिया। गर्मी से परेशान सियाहों ने स्विमिंग पूल्स और सायादार जगहों का रुख कर लिया। उधर इटली में 40 डिग्री सेंटीग्रेड के दर्जा हरारत में काम करने वाले शख्स हलाक हो गए। जी बिल्कुल अफसोसनाक खबर है, जबकि इटली के 8 बड़े शहरों में हीट वेव रेड अलर्ट जारी किया गया है। इटली के 2 सबसे बड़े जजीरों सिसिली और सार्डिनिया में पारा 45 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान है। कब्रस में 41, क्रोएशिया में 39 और फ्रांस में 34 डिग्री तक रहने का इम्कान है। अमरीकी रियासतों न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कनेक्टिकट, पेंसिल्वेनिया, मैसाचुसेट्स और वर्मोंट में बारिशों से निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया, जिसके बाद वर्मोंट में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। खबर शामिल करें अफसोसनाक खबर है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की सेशन कोर्ट में फायरिंग के नतीजे में खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। सेशन कोर्ट में पेशी के मौका पर मुखालफिन की फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद जान की बाजी हार गए। वाकई की इत्तला पर पुलिस की भारी नफरी और रेस्क्यू टीम सेशन कोर्ट पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक रेस्क्यू टीमों ने दोनों अफराद को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया, ताहम वो जानबर ना हो सके। जाँ बहक होने वालों को 9 गोलियां लगी। पुलिस की जानिब से वाकई की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। डोगरा फोर्सेस के जुल्म के खिलाफ दुनिया भर में आज यौम शोहदाए कश्मीर इंतहाई जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। 13 जुलाई 1931 को मकबूजा कश्मीर में 22 मुसलमानों को शहीद किया गया था। 13 जुलाई 1931 कश्मीरी तारीख का स्याह तरीन दिन है, जबकि 22 ने हत्या कश्मीरी डोगरा राज की सफाकी का निशाना बने। 88 साल पहले बहने वाला कश्मीरियों का नाहक खून आज भी तरोताजा है। हुर्रियत पसंद जांबाजों की याद में दुनिया भर में यौम शोहदाए कश्मीर मनाया जा रहा है। और हुर्रियत क़यादत की अपील पर मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल की गई है। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक जुलाई 1931 को श्रीनगर जेल के 13 बाहर डोगरा महाराजा के फौज की जानिब से 22 मुजाहिरीन को शहीद कर दिया गया था, जबकि एक अजान के 17 कलमात को अदा करने के लिए वादी कश्मीर के 22 जवान खड़े हो गए थे। श्रीनगर जेल के बाहर एहतजाज के दौरान जब जोहर की नमाज का वक्त हुआ तो एक नौजवान अजान देने के लिए खड़ा हो गया, जिसे डोगरा महाराजा की अफवाज ने फायरिंग करके शहीद कर दिया था। इस हमले को चैलेंज के तौर पर कबूल करते हुए
کشمیری نوجوانوں نے اذان پوری کرنے کی ٹھانی اور پہلے شہید کے بعد ہی دوسرا نوجوان آگے بڑھا اور بقیہ اذان دینے کی کوشش کی تو اسے بھی شہید کر دیا گیا۔ اس طرح 22 کشمیری نوجوانوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اذان مکمل کی۔ اس دوران 100 سے زائد مظاہرین زخمی بھی ہوئے۔ آج بھی بھارت کی 8 لاکھ سے زائد مسلح افواج مقبوضہ کشمیر پر قابض ہے، جس کے خلاف کشمیری عوام کی جدوجہد جاری ہے۔ مودی سرکار نے 13 جولائی کی سرکاری تعطیل ختم کر کے ظالمانہ ہندوتوا تاریخ کو بدلنے کی کوشش کی تھی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کی ہدایت پر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کا کالے شیشوں غیر نمودہ فینسی نمبر پلیٹس کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر آپریشن جاری ہے۔ 15 رنگ برنگے شیشے اور فینسی نمبر پلیٹس والی گاڑیوں کی رجسٹریشن معطل کر دی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر سیکریٹریٹ نے AETOs اور ٹریفک پولیس کے ہمراہ بارہکوہ میں گاڑیوں کو چیک کیا۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ گاڑیوں سے فوری طور پر رنگ برنگے شیشے اور فینسی نمبر پلیٹس اتار کر پھینک دیں اور صرف محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کی منظور شدہ نمبر پلیٹس کا ہی استعمال کریں۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ گندھارا سمپوزیم کے دوسرے روز چیئرمین وزیر اعظم ٹاسک فورس ڈاکٹر رمیش کمار وانکوانی کی سربراہی میں مندوبین نے ٹیکسیلا میوزیم دھرمارا جے کا اسٹوپا کا دورہ کیا اور گندھارا کلچرل شو میڈیا ایوارڈ کی رنگا رنگ تقریب میں شرکت کی۔ مندوبین کو گوتم بدھا کا مجسمہ دکھایا گیا۔ شرکا کے اعزاز میں پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس کے فنکاروں نے پرفارمنس سے امن محبت کا پیغام دیا۔ اس موقع پر راہبوں کی جانب سے پیس میڈیٹیشن بھی کی گئی۔ مختلف ممالک سے آئے راہبوں کا چیئرمین ٹاسک فورس ڈاکٹر رمیش کمار وانکوانی نے خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا اور یادگاری شیلڈ پیش کی۔ بہترین کوریج کرنے والے چینلز کے رپورٹر کو انٹرنیشنل گندھارا میڈیا ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ کوہ نور نیوز سے بھی ایوارڈ حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ اس موقع پر ڈاکٹر رمیش کمار کا کہنا تھا کہ اپنے خواب کی تکمیل کے لیے کوششوں کو جاری رکھوں گا۔ آج یہ کامیابی پاکستان میں امن کی آمد کا پیغام ہے۔ گندھارا سیاحت سے پاکستان میں معیشت کے ساتھ دنیا بھر میں جو پیغام جائے گا وہ دنیا بھر کے سیاحوں کو پاکستان کی طرف کھینچ لائے گا۔ پہلے سال 5 لاکھ غیر ملکی سیاحوں کو پاکستان لانا میرا خواب ہے، جس کی جلد تعبیر ہوگی۔ خبر شامل کریں گے حافظ آباد سے، جہاں سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ CEO ہیلتھ مدیحہ اکرم نے میڈیا کو بریفنگ میں بتایا کہ سیلاب کے ممکنہ خطرے کے پیش نظر محکمہ صحت کی جانب سے دریائے چناب کے کناروں پر دیہاتوں میں میڈیکل کیمپس قائم کر دیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں ہیڈ قادر آباد کالونی، اڈا خان پور، ٹھٹی بھاولپور، جلال پور بھٹیا میں بھی میڈیکل کیمپس لگائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ محکمہ صحت کے موبائل ٹیمیں علاقے بھر میں کسی بھی ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سیلاب زدہ علاقوں میں سیلاب کے دنوں میں اور بعد میں بھی بہت سے وبائی امراض تیزی سے پھیلتے ہیں۔ ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے محکمہ صحت کی اسپیشل ٹیمیں علاقے بھر کی صورتحال کی کڑی نگرانی کر رہی ہیں۔ شیخوپورہ سے افسوسناک خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد سے لاہور جانے والی تیز رفتار کار کھائی میں جا گری، ایک بچی جاں بحق جبکہ 3 افراد زخمی ہو گئے۔ حادثہ موٹر وے ہرن مینار انٹرچینج پر ڈرائیور کو اونگ جانے کے باعث پیش آیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں DHQ ہسپتال شیخوپورہ میں موجود اپنے رپورٹر محمود بیگ سے۔ جی محمود، آگاہ کیجیے گا۔ آج بالکل یہ افسوسناک واقعہ شیخوپورہ تھانہ صدر کی حدود ہرن منار انٹرچینج پر رونما ہوا ہے، جہاں اسلام آباد سے لاہور جانے والی ایک تیز رفتار کار جو ہے ڈرائیور کے اونگ آنے کے باعث کلا بازیاں کھاتی ہوئی گہری کھائی میں جا گری۔ حادثہ کے نتیجہ میں 10 سالہ کم سن بچی زینب جو ہے وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی ہے، جبکہ تاجر عامر، اس کی اہلیہ رضیہ بی بی اور بیٹی مریم جو ہیں وہ شدید زخمی ہوئی۔ FWO کے اہلکاروں نے تینوں زخمیوں کو
क्रिटिकल हालत में DHQ हस्पताल शेखपुरा मुंतकिल किया। हम इस वक्त मौजूद हैं DHQ हस्पताल एमरजेंसी के बाहर, जहां पर जख्मियों को तिबी अमदाद के बाद लाहौर जनरल हस्पताल रेफर किया गया है। ड्यूटी डॉक्टर के मुताबिक रज़िया बीबी जो है उसकी हालत तशवीशनाक है, उसको हेड इंजरी आई है, जबकि बेटी और बाप की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जी खबर शामिल करें एबटाबाद से, जहां ज़िले इंतजामिया की नाअहली से 20 किलो आटे का थैला 2800 से 3000 में फरोख्त होने लगा। शहरी इंतजामिया और हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे उबैदुर रहमान सुलेमानी से। जो उबैद, आगाह कीजिएगा, क्या कहना है आवाम का? जी बिल्कुल, इस वक्त मेन बाजार एबटाबाद में हम मौजूद हैं। ज़िले इंतजामिया की कमज़ोर गिरफ्त की वजह से आटे की कीमत में मनमाना इजाफा हो चुका है। 2800 से 3000 के करीब 20 किलो आटा फरोख्त किया जा रहा है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है और ये महंगाई क्यों हो रही है। इसका जिम्मेदार यही 13 जोकर जो इकट्ठे हो गया, यही है। ये ज़िले इंतजामिया आपको कहीं बाजार में नजर आई है? कोई नहीं आया इधर, हर एक मनमानी का, आज ये चीज ले लो कल डबल होगा, कोई पूछने वाला नहीं है इधर। क्या लगता है ये आटा सस्ता हो जाएगा, अपने पुरानी कीमत पे आ जाएगा? इनसे हमारा कोई तवक्को नहीं है। वो इंसाफ कार्ड वापस आएगा? नहीं आएगा। एक गरीब आदमी को जब डॉक्टर बोलते हैं ना कि 5 लाख रुपए लगेगा, उसका ब्लड प्रेशर आई, वो हार्ट अटैक हो जाता था। इधर कोई नहीं है दोस्त, अपने जेब के लिए। ये IMF का जो कैसा है ना, इनके जेबों में भी चला जाएगा, हमारे लिए क्या है। बिल्कुल जी, हमारी शहरियों से बात हुई है, उनका यही कहना था कि ज़िले इंतजामिया बाज़ारों में नज़र नहीं आती और हुकूमत से इस तरह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो सेहत कार्ड को बहाल कर सके या आटे की कीमत में कमी ला सके। इस वक्त ज़िले इंतजामिया की कमज़ोर गिरफ्त की वजह से आटे की कीमतें मनमाना इजाफा हो चुका है। और इसी तरह अगर तंदूरों की बात की जाए तो वहाँ पर कम वज़न रोटी जो है इंतजामिया की जानब से 20 रुपये का नोटिफिकेशन तो मौजूद है, लेकिन 20 रुपये की रोटी ज़िला भर में बल्कि हज़ारा भर में आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगी और यही सिलसिला चल रहा है। जी कोटअदू का नौजवान मोहम्मद सुहेल हजारों नौजवानों को ऑनलाइन बिजनेस के गुर सिखाने लगा। मुख्तलिफ ऑनलाइन मार्केटिंग एप्स को इस्तेमाल करके किस तरह नौजवान पैसे कमा सकते हैं, मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अमीर हमजा से, जो इस वक्त मोहम्मद सुहेल के हमरा मौजूद है। जी हमजा, बताइएगा क्या गुर सिखाने हैं? बिल्कुल, मौजूदा दौर में माशी बदहाली, महंगाई, बेरोज़गारी के सबब नौजवान जो है इंटरनेट के ज़रिए घरों में बैठकर किस तरह से जो है वो लाखों रुपए माहाना जो है अर्निंग कर सकते हैं। कौन सी ऐसी ऐप्स हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए जो है नौजवान अपना जो है रोज़गार जो है वो चला सकते हैं। मेरे साथ इस वक्त मोहम्मद सुहेल मौजूद है और सुहेल ने जो है 9th क्लास से जो है ऑनलाइन अर्निंग का जो ये काम सीखा है और अब जो है अपनी एकेडमी बना ली है। सुहेल मौजूद है, उनसे जानते हैं। आप मुझे बताइएगा किस तरह से जो है आपने इसका स्टार्ट लिया, किस तरह से नौजवान जो है कौन कौन सी ऐसी ऐप्स हैं, कितने रुपए माहाना जो है वो कमा सकते हैं, क्या तरीक़ाकार है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले स्टार्ट लेने से पहले मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियोस वगैरह देखता रहता था, तो मुझे पता नहीं चलता था कि मैं सोचता था कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमाते हैं। तो मैं दोस्तों से मुशावरत करता था, कोई बताता था कोई नहीं बताता था। आज के जदीद दौर में फिर मैंने इंटरनेट से काफ़ी सारा बेसिक जो था वो मैंने सीखा। उसके बाद मैंने मुल्तान मक्स इंस्टीट्यूशन से अपना अमेज़ोन का कोर्स कंप्लीट किया और कोर्स कंप्लीट करने के बाद मैंने ये देखा कि मैं पैसे कमा रहा हूँ, मेरे और दोस्त जो गरीब तबका है वो पैसे क्यों नहीं कमा रहे, ताकि मैं उनको भी ऑनलाइन फील्ड के अंदर लेकर आऊँ, उन बच्चों का भी फ़ायदा हो, जो गरीब तबका है उनका भी फ़ायदा हो। फिर मैंने अपना एक इंस्टीट्यूशन बनाया ब्राइट फ्यूचर इंस्टीट्यूट के नाम के ऊपर कोटअदू में। उसके बाद मैंने जब ये सोचा कि हाँ मैट्रिक लेवल से अबव जो बच्चे हैं वो मतलब कि अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, जो मतलब कि मिडिल तबका है क्या वो क्यों नहीं काम कर सकते। उसके लिए मैंने एक छोटा कोर्स क्रिएट किया। उस कोर्स के अंदर मेरा 1 महीने का कोर्स होता है, मैं बच्चों को उनके ट्रेनिंग देता हूँ। महीने के अंदर वो इतने काबिल हो जाते हैं कि वो मतलब खुद सर्च करना सीख जाते हैं। वो मैं जो काम सिखाता हूँ डाटा एंट्री स्केप ट्रेसिंग का सिखाता हूँ, 1 महीने के अंदर कंप्लीट कोर्स करवाता हूँ। फिर उनके बाद बच्चों को ये सिखाता हूँ कि मार्केटिंग के अंदर से आपने कैसे क्लाइंट ढूंढना है, कैसे क्लाइंट से मतलब डीलिंग करनी है। बाकी इसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, वेब डेवलपमेंट, वर्ड प्रेस, ऑटोकैड और MS ऑफिस वगैरह की क्लासेस भी हमारे पास होती हैं। बेसिक जो हमारा है वो है अमेज़ोन का। अमेज़ोन का जो लॉन्ग टाइम पीरियड है वो 3 मंथ का है। 3 मंथ के अंदर जो अमेज़ोन प्राइवेट लेबल है, अमेज़ोन
होल सेल का है, अमेजोन मतलब कि वर्चुअल असिस्टेंट है, अमेजोन ड्रॉप शिपिंग है। जो हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग कर रहे हैं वो है अमेजोन ड्रॉप शिपिंग। बेसिक सबसे ये है कि अगर आपने स्किल को अच्छी तरह से सीख लिया है तो आप पैसे कमा सकते हैं। जी बिल्कुल, जिसकी स्किल अच्छी नहीं वो कुछ भी नहीं कर सकता। मोहम्मद सुहेल जो है मेरे साथ मौजूद थे, वो बता रहे थे कि मुख्तलिफ ऐप्स के जरिए जो है। शांगा मांगा से अहम खबर शामिल करें, जहां गवर्नर मुलाजिम सरकारी गाड़ी पर गंदम स्मगल करने लगे। असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ कसूर ज़ीशान ज़ुदोई गंदम की स्मगलिंग में मुलविस निकले। महकमा खुराक और इंतजामिया की आंखों में धूल झोंकने में वाइल्ड लाइफ की सरकारी गाड़ी स्मगलिंग में इस्तेमाल भी की गई है। इस पर मजीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदे राना इरफान हैदर से। जी राना इरफान, बताइएगा ये क्या वाकया है और पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है? जी, असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ ज़ीशान ने अपनी तैनाती से अब तक मुसलसल महकमा वाइल्ड लाइफ और जंगली हयात को अपनी जाती जागीर समझा हुआ है। इस वाक़े में भी आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ ज़ीशान ने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए गैर कानूनी तौर पर गंदम की स्मगलिंग के लिए सरकारी गाड़ी जो है वो इस्तेमाल की है। तहसील चूनिया में इंतजामिया की बात करें तो असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया ने तहसील चूनिया में गंदम की गैर कानूनी नकलो हरकत पर मुकम्मल पाबंदी आयद की हुई है। जबकि हमारे नाजरीन देख सकते हैं कि किस तरह असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ ज़ीशान का सरकारी ड्राइवर अफजल चूनिया के नवाही गांव कोट बसावा सिंह से गंदम की गैर कानूनी स्मगलिंग के लिए कसूर के तमाम महकमों की आंखों में धूल झोंकने के लिए सरकारी गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है। अभी तक अगर कार्रवाई की बात करें तो अभी तक इस वाक़े पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जबकि हमारा जो राब्ता हुआ असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ ज़ीशान से तो उसने इस वकूए को गोलमोल करने की कोशिश की। जबकि मैं अपने नाज़रीन को ये बताता चलूं कि जिस जगह से ये गंदम स्मगल की गई है वहां ये असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ ज़ीशान रोजाना की बुनियाद पर अपनी ड्यूटी के वक्त मौजूद होता है। और अभी ये करने की कोशिश की जा रही है कि कोई फेक इंक्वायरी अमल में लाकर और छोटी मोटी कार्रवाई इस ड्राइवर के खिलाफ करके इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। शहरी जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया से, डिप्टी कमिश्नर कसूर से और डीजी वाइल्ड लाइफ से नोटिस लेकर महकमा वाइल्ड लाइफ के इन करप्ट जिम्मेदार अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं, जिन्होंने गंदम की स्मगलिंग जैसे संगीन जुर्म का इर्तिकाब किया, वो भी सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करते हुए। जी इरफान हैदर, बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। इस्लामाबाद से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी की मीटिंग सेहत सहूलत प्रोग्राम के मंसूबे थर्ड रिवाइज की मंजूरी दे दी गई है। सेहत सहूलियत प्रोग्राम से पाकिस्तान के कौन कौन से इलाके मुस्तफिद हो सकेंगे और ये प्रोग्राम कितना सहूलतमंद साबित हो सकता है? जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें। इस्लामाबाद में सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी की मीटिंग हुई है। सेहत सहूलत प्रोग्राम के मंसूबे पर थर्ड रिवाइज की मंजूरी दे दी गई है। सेहत सहूलत प्रोग्राम से पाकिस्तान के कौन कौन से इलाके मुस्तफीद हो सकेंगे और ये प्रोग्राम कितना सहूलतमंद साबित हो सकता है, आपको अपडेट कर रहे हैं इस अहम खबर के हवाले से कि इस्लामाबाद में सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी की मीटिंग मुनक्किद हुई है। सेहत सहूलत प्रोग्राम के मंसूबे पर थर्ड रिवाइज की मंजूरी दे दी गई है। सेहत सहूलत प्रोग्राम से पाकिस्तान के कौन कौन से इलाके मुस्तफिद हो सकेंगे और ये प्रोग्राम कितना सहूलतमंद साबित हो सकता है, आपको अपडेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद में सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी की मीटिंग हुई। सेहत सहूलत प्रोग्राम के मंसूबे थर्ड रिवाइज की मंजूरी भी दे दी गई है। सेहत सहूलत प्रोग्राम से पाकिस्तान के कौन कौन से इलाके मुस्तफिद हो सकेंगे और ये प्रोग्राम कितना सहूलतमंद साबित हो सकता है? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि इस्लामाबाद में सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी की मीटिंग मुनक्किद हुई है। सेहत सहूलत प्रोग्राम के मंसूबे थर्ड रिवाइज की मंजूरी दे दी गई है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपनी रिपोर्टर सोनिया मलिक से। जी सोनिया, आगाह कीजिएगा किस तरह से सहूलत दी जा रही है? प्रोग्राम के मंसूबे थर्ड रिवाइज की मंजूरी दे दी गई है और वजारत कौमी सेहत की खिदमत बराबित और कोऑर्डिनेशन की जानिब से ये मंसूबा पेश किया गया था। ये मंसूबा सूबा सिंध के जिला सरकारकर, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में पूरे पाकिस्तान में नाफिजुल अमल होगा। सेहत सहूलत प्रोग्राम के मंसूबे की जो कुल मालियत बताई जा रही है वो 51 अरब 44 करोड़
39,61,000 है, जबकि मंसूबे पर जो अमल दरामद की जो मुद्दत बताई जा रही है वो जून 2025 है, यानी जो 2025 तक ये जो मंसूबा है ये मुकम्मल हो जाएगा। मंसूबे ने बेनाशुदा खानदान की तरफ से अस्पताल में दाखिल मरीजों की देखभाल के अखराजात में कम अज कम 60% जो है वो कमी भी की गई है। सेहत सहूलत प्रोग्राम का मकसद तबाकुन सेहत के अखराजात के खिलाफ समाजी सेहत का तहफ़्फ़ुज़ है और शहरियों को बावकार तरीके से तिब्बी सहूलत मुहैया किया जाएगा। जी ठीक है सोनिया, आप अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब सोशल सिक्योरिटी खैबर पख्तूनख्वा के वफ्द का लाहौर का 3 रोज़ा दौरा जारी है। पंजाब सोशल सिक्योरिटी के वर्कर्स और उनके अहल खाना की बेहतरी के लिए उठाए जाने वाले इक़दाम का मुशाहिदा करेगा। वफ्द पहले रोज पंजाब सोशल सिक्योरिटी हेड ऑफिस लाहौर पहुंचा, जिसमें एनुल्लाह खान नायब कमिश्नर, सफीर खान डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर कंट्रीब्यूशन साकिब और दीगर शामिल थे। हेड ऑफिस पहुंचने पर पंजाब सोशल सिक्योरिटी के मुतल्लिका अफसरान ने वफ्द का इस्तकबाल किया। मेडिकल एडवाइजर डॉक्टर सुहेल अजीज और दीगर हेड ऑफिस प्रिंसिपल अफसरान भी इस मौका पर मौजूद थे। डायरेक्टर EMR डॉक्टर फातिमा आसिम ने वफ्द को पंजाब सोशल सिक्योरिटी की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग देते हुए कहा कि IT मनसूबाजात अजर और अजीर की बेहतरी के लिए उठाए जाने वाले इक़दाम के बारे में आगाह करेगा और ऑनलाइन कंट्रीब्यूशन सिस्टम और नए इदारों के रजिस्ट्रेशन के बारे में आगाही फराहम करेगा। वफ्द को सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों में अस्पताल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के नफाज और पेशरफ्त के बारे में आगाह भी किया जाएगा। सरबराह लाहौर पुलिस बिलाल सदीक कमियाना की जेर सदारत इन्वेस्टिगेशन विंग के आला अफसरान का अहम इजलास, DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान कीश्वर, SSP CIA कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक, SP इन्वेस्टिगेशन अनुज मसूद चौधरी, डिविजनल SPs और SDPOs इंचार्ज ने भरपूर शिरकत की। इजलास में जेर तफ्तीश मुकदमात, जेर इल्तवा रोड सर्टिफिकेट्स और खामोश मुल्ज़मान के खिलाफ इनके हवाले से कारकर्दगी का तफसीली जायजा भी लिया गया। CCPO ने जेर तफ्तीश मुकदमात और पेंडिंग रोड सर्टिफिकेट्स जमा न करवाने पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के सख्त सरजनिश कर दी। मुतल्लिका अफसरान को कारकर्दगी में बेहतरी लाने की सख्ती से हिदायत की गई। उन्होंने वार्निंग दी कि जो अफसर काम करेगा वही अपनी सीट पर रहेगा, पेंडेंसी खत्म करे वरना सजा के लिए तैयार रहे। उन्होंने मुतल्लिका SPs और DSPs को जेर तफ्तीश मुकदमात, पेंडिंग रोड सर्टिफिकेट्स और खामोश मुल्ज़िमान फौरी यकसू करने, आदि मुजरमान, मफरूर मुल्ज़मान और इश्तहारियों की बेकनी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील देने की हिदायत भी कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि खामोश मुल्ज़मान को इश्तहारी करार देकर रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। शहरी को पुरअमन माहौल की फराहमी लाहौर पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में शोबा मेडिसिन यूनिट 3 के ज़ेरे एहतमाम डेंगू की रोकथाम के लिए तरबियती वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। शोबा मेडिसिन के प्रोफेसर मोहम्मद आफ्ताब ने अपनी टीम के हमरा उनका इस्तकबाल किया। वर्कशॉप में चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, जीन फैकल्टी ऑफ नर्सिंग, डायरेक्टर क्वालिटी एनहांसमेंट सेल प्रोफेसर बल्कीस शब्बीर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट शोबा मेडिसिन और दीगर शोबों के फैकल्टी मेंबरान, पोस्ट ग्रेजुएट तलबा तलबात ने, हाउस ऑफिसर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ कसीर तादाद में मौजूद थे। वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल का कहना था कि तरबीती वर्कशॉप्स के बुनियादी मकसद डेंगू के बारे में आगाही पैदा करना है, एहतियाती तदाबीर को फरोग देना और सेहत के सहूलतकारों को सहूलियात की फराहमी के लिए बेहतर बनाया जाएगा। जिसने एक इंसान की जान बचाई, गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। CIA चूंग से मुबैना मुकाबला, संगीन वारदातों में मुलविस मुल्जिम मारा गया। तर्जुमान CIA असद रजा के मुताबिक DSP फारूक असगर अवान मुल्जिम अदील उर्फ अदीला मौजू को पुलिस टीम के हमरा निशानदही के लिए ले जा रहे थे। इसके साथियों ने छुड़ाने के लिए फायरिंग कर दी। इस दौरान मुल्जिम अदील अपने साथियों की गोलियों से हलाक हो गया। मुल्जिम चोरी, डकैती, राहज़नी, अगवा, बराए तावान, सरेआम डकैती, खवातीन से गैंग रेप की वारदातों में मुलविस था। इस पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये लाहौर में CIA चूंग के DSP फारूक असगर अवान और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ और फायरिंग के
नतीजा में चोरी, डकैती, राहजनी, अगवा बराए तवान, हाउस रॉबरी, शरायाम पर सरेआम डकैती और वारदात के दौरान खवातीन से गैंग रेप की वारदातें करने वाला खतरनाक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। अगर बात की जाए डाकू की तो अदील उर्फ दिला मौजर इसका नाम था, जो कि लाहौर में 100 से 50 डकैती व दीगर वारदातों में ये लाहौर पुलिस को मतलूब था। बाकायदा तौर पर लाहौर के बेशतर थानों में ये इश्तिहारी मुलजिम भी था जिसको गिरफ्तार किया गया था। बाकायदा SSP CIA लियाकत अली मलिक ने मुलजिम की गिरफ्तारी का हुक्म भी दिया था और फ़ारूक असगर अवान ने दिन रात मेहनत करके अपनी टीम के साथ इसको गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार करने के बाद इसको निशानदही पर ले जाया जा रहा था कि मुलजिम के दीगर साथियों को इसके आने की पहले से ही खबर होगी, जिसने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। न सिर्फ सरकारी गाड़ी को नुकसान पहुंचा बल्कि मुलजिम के अपने ही साथियों ने गोलियां मारकर अपना ही साथी जो है वो हलाक कर दिया। अदील उर्फ अदीला मौजर इसका नाम था और इसकी CCTV फुटेज में भी देखा जा सकता है कि लाहौर की सड़कों के ऊपर सिग्नल बंद है और दौरान वारदात ये शहरियों को तशद्दुद का निशाना भी बना रहा है और बाकायदा तौर पर एक हाथ में पिस्टल पकड़ा हुआ है और सिग्नल बंद है। गाड़ी के अंदर ज़बरदस्ती दाखिल होकर मोबाइल फ़ोन नकदी छीन कर ये वहाँ से फरार हो जाता है। ये लाहौर की सड़कों पर बड़ी दीदा दिलेरी के साथ वारदात करता था। जिस तरह से लोकल पुलिस की अगर बात की जाए तो लोकल पुलिस जब इसको गिरफ्तार करने के लिए जाती थी ये फायरिंग करके इनको डरा धमका देता था। आखिरकार इसकी गिरफ्तारी का टास्क जो है वो CCP और लाहौर की जानिब से IG पंजाब की जानिब से SSP जो है वो CIA को दिया गया, जिस पर SSP CIA लियाकत अली मलिक ने फ़ारूक असगर अवान को इसका जो है वो टास्क दिया था। उन्होंने दिन रात मेहनत करके जो है वो मुलजिम को गिरफ्तार किया और बाकायदा बड़े बड़े इंकशाफात किए गए। जिस तरह से लाहौर समेत दीगर इजला में भी डकैती की वारदातें कर चुका था और इसके दीगर साथियों की तलाश में पुलिस छापे भी मार रही थी। तो इसको जब निशानदेही पर ले जाया जा रहा था तो बाकायदा इसके जो साथी थे इसको छुड़वाना चाहते थे, जिन्होंने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग की। ना सिर्फ जो है वो सरकारी गाड़ी को जिस तरह से मैंने बताया कि नुकसान पहुंचा और वो जो गोलियां थी पिस्टल से निकलने वाली वो अदील उर्फ दिला मौजर को लगी और वो शदीद जख्मी हो गया था, जिसको पुलिस ने फौरी तौर पर जो है वो मुकामी अस्पताल पहुंचाया और डॉक्टरों के मुताबिक जो है वो उसकी डेड बॉडी यहाँ पर लाई गई थी। डॉक्टरों का कहना था कि ये कुछ ही देर पहले जो है वो गोलियों का निशाना बनने के बाद जो है वो हलाक हो गया है। इसी तरह से दीगर जो मुलजमान फायरिंग करने वाले थे अदील उर्फ दिला मौजर के ऊपर, उनकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो DIG इन्वेस्टिगेशन समेत SSP CIA लियाकत अली मलिक ने जो है वो अब टास्क दे दिया है, क्योंकि जिस साथी को कत्ल किया था उस साथियों को जो है वो गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने जो है वो जगह जगह नाकाबंदी भी की है और बाकायदा जो है वो जगह जगह छापे भी मारे जा रहे हैं और कहना है कि जल्द जो है वो फायरिंग करने वाले मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुलजमान के हवाले से मैं बताता चलूँ कि इंतहाई ख़तरनाक है। जिस तरह से ये लाहौर की सड़कों पर वारदात करते थे और ये ख़वातीन के साथ गैंग रेप भी करते थे, क्योंकि जिस घर के अंदर हाउस रॉबरी की वारदात की जाती थी वहाँ से ये जेवरात, पैसे, मोबाइल फ़ोन, नकदी लूटते थे और वहाँ पर जो है वो उनकी इज्जतें भी ख़राब करते थे। और बाकायदा पुलिस ने इनको गिरफ्तार करने की जब कोशिश की तो इन्होंने पुलिस पार्टी पर भी फायरिंग की, लेकिन फ़ारूक असगर अवान के सर पे जो है वो सेरा सजा और उन्होंने इसको गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करने के बाद इसको निशानदेही पर ले जाया जा रहा था और दीगर साथियों ने जो है वो पुलिस पार्टी पर इसको छुड़वाने के लिए फायरिंग की और फायरिंग के नतीजे में जो है वो अपने ही साथी को कत्ल करने के बाद ये लोग फरार हुए। अब जो है वो फरार मुलजमान की तलाश में पुलिस जगह जगह छापे मार रही है। जी बिल्कुल, ये लाहौर में CIA चूंग के DSP वसीम साबिर अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। सूबाई वज़ीर हाउसिंग औकाफ बैरिस्टर सईद असफर अली नासिर का दरिया सतलुज में मुमकिन सैलाब से निमटने के लिए किए गए इक़दाम का जायजा लेने के लिए कसूर का दौरा। तलवार पोस्ट पर कायम फ्लड रिलीफ कैंपों में सहूलियात को चेक किया। दरिया सतलुज में पानी की मौजूदा सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग भी दी गई। सूबाई वज़ीर हाउसिंग औकाफ पंजाब बैरिस्टर सईद असफर अली नासिर ने गुज़िश्ता रोज दरिया सतलुज में मुमकिन सैलाब की सूरत हाल और ज़राई इंतजामिया की तरफ से किए गए इक़दाम का जायजा लेने के लिए कसूर का दौरा किया। इस मौके पर दरिया सतलुज में मौजूदा पानी की सतह, मुख्तलिफ महकमों के स्टाफ, मशीनरी और अद्वियात के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सूबाई वज़ीर ने दरिया सतलुज के हेड में मौजूद आबादियों के फौरी इंखला के लिए इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया और रेस्क्यू स्टाफ और मशीनरी की तादाद बढ़ाने की हिदायत कर दी। इस मौके पर सूबाई वज़ीर हाउसिंग बैरिस्टर असफर अली नासिर का कहना था कि इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है, ताहम पंजाब में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल की कड़ी निगरानी की जा रही है। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम वसाइल को बरोए कार लाया जाएगा।
गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वफ्द की सदर डॉक्टर खुर्रम तारिक की क़यादत में मुलाकात। इस मौके पर गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान का कहना था कि ताजर बरादरी का मुल्की समाजी इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार है। मुल्क में सनत और तजारत से न सिर्फ मुआशी तरक्की होती है बल्कि कई खानदानों को रोजगार भी मिलता है। गवर्नर पंजाब का कहना था कि सनतों को हुनरमंद अफराद कुव्वत की फराहमी के लिए टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन का फरोग बहुत अहमियत का हामिल होगा। तलबा में मेरिट पर लैपटॉप की तकसीम से एंटरप्रेन्योरशिप के मौके भी बढ़ेंगे। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की वफ्द को फैसलाबाद की बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी। उन्होंने कहा कि ज़राई आलात पर सेल टैक्स के हवाले से सिला नजरसानी के लिए विफाकी हुकूमत तक पहुंचाऊंगा। गवर्नर का कहना था कि फैसलाबाद की बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल के हल के लिए सूबाई सतह पर फौरी फैसलों के अलावा विफाक से मुतालिका मसाइल के हल के लिए भी सिफारिशात मुतालिका इदारों को भेजी जाएंगी। सीईओ मॉडल बाजार शाहिद कादिर के मॉडल बाजार के अचानक दौरे। सीईओ शाहिद कादिर ने मॉडल बाजार, सब्ज़ाजार और मियां प्लाजा जोहर टाउन का दौरा किया। शाहिद कादिर ने मॉडल बाजार में सब्जियों और फलों की क्वालिटी और रेट के बारे में सार्फिन से दरियाफ्त किया। सार्फिन की जानिब से ज़ायद कीमतें वसूल करने की शिकायत पर सीसीओ शाहिद कादिर ने इंतजामिया की सख्त सरदनिश कर दी और आइंदा ज़ायद कीमतें वसूल करने वाले स्टॉल्स के लाइसेंस मनसूख करने का भी हुक्म जारी कर दिया। शाहिद कादिर ने सफाई के नाकिस इंतजाम पर इंतजामिया को हिदायत की है कि सफाई के इंतजाम को बेहतर किया जाए और सार्फिन के लिए बारिश से बचाव के लिए फौरी शेड्स लगा दिए जाए। शाहिद कादिर ने इंतजामिया की हिदायत की है कि मॉडल बाजारों में बारिश के दौरान डेंगू सर्वेलेंसेस के बारे में इकदाम किए जाएंगे। शाहिद कादिर का कहना था कि मॉडल बाजारों में जरूरत जिंदगी की तमाम अशिया सस्ते दामों फरोख्त की जाएगी। चेयरमैन नेशनल मीडिया एसोसिएशन चौधरी शहबाज अराइन, मॉडल बाजार के CIA फरहान दिलावर, चीफ इंटरनल अफसर भी शाहिद कादिर के हमरा मौजूद थे। दूसरी जानिब DIG ऑपरेशंस लाहौर अली नासिर रिजवी की हिदायत और SB सिटी ऑपरेशंस हमजा अमानुल्लाह के हुक्म पर SHO शाहजहां मोहम्मद सगीर के इलाके में पतंगबाजी और पतंग साजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी आ गई है। शाहजहां के इलाके में पतंगबाजी का शौक नौजवान को जेल की दीवारों के पीछे ले गया है। तर्जुमान सिटी डिवीजन मोहम्मद रियाज के मुताबिक मुलजिम नवाज पेशावर से खूनी खेल का सामान मंगवा कर फरोख्त करता था, जिसे गिरफ्तार करके लाखों रुपए मालियत की पतंगे और केमिकल की चरखियां बरामद कर ली गई हैं। इस मौका पर SHO शाहजहां का कहना था कि इलाके में किसी को खूनी खेल खेलने की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की पंजाब क्लब में एशियन डेवलपमेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर नूर अहमद से मुलाकात हुई। निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम और एशियन डेवलपमेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर नूर अहमद के दरमियान सेहत के शोबे में बेहतरी के इक़दाम पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। एशियन डेवलपमेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम को सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई है। डॉक्टर जावेद अकरम का कहना था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अहमद ने सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए हुकूमत पंजाब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की जानिब से पंजाब में नर्सिंग यूनिवर्सिटी के क़याम, इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज के क़याम और सरकारी अस्पतालों में तिबी सहूलियात में बेहतरी के लिए ताउन की यकीन दहानी इंतहाई खुश आइंद अमल है। वहीं दूसरी जानिब चेयरमैन लेस्को बोर्ड ऑफ गवर्नर मियां मोहम्मद नुमान ने कहा कि मौजूदा हुकूमत के दौर में मीटरों समेत मटेरियल की किल्लत को खत्म करने, लाइन लाइसेंस और बिजली चोरी रोकने के लिए इकदाम किए जाएंगे। लाहौर प्रेस क्लब में मीट दी प्रेस प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बिजली से मुतल्लिका सहाफियों के मसाइल भी हल करेंगे। उनके हमरा शाहिद हैदर, लाहौर प्रेस क्लब के सदर आजम चौधरी, खजांची हाफिज मोहम्मद फैज समेत दीगर सहाफी भी मौजूद थे। मियां हाफिज मोहम्मद नुमान और चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर की आमद के मौके पर लाहौर प्रेस क्लब के सदर आजम चौधरी, खजांची हाफिज फैज और दीगर मेंबरान ने उनको खुश आमदेद कहा।
मीट द प्रेस से खिताब करते हुए हाफिज मियां मोहम्मद नुमान ने कहा कि लेस्को पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिस्को है। ये कंपनी 3.25 करोड़ की आबादी को डील कर रही है। लेस्को के सिस्टम में 64 लाख मीटर लगे हुए हैं। मौजूदा हुकूमत के दौर में लेस्को और अवाम का फासला कम करने के लिए अब तक 44 खुली कचहरियां लगाई जा चुकी हैं। गुज़श्ता दौरे हुकूमत के दौरान लेस्को के लिए मटीरियल परचेजिंग पर पाबंदी आई थी, ताहम मौजूदा हुकूमत के दौरान इस पाबंदी को हटाया गया। लेस्को के 5,91,000 मीटर इल्तवा का शिकार थे। नए मीटरों की खरीदारी के बाद मीटरों की किल्लत खत्म हो गई है। कोशिश कर रहे हैं कि अगस्त तक 8 से 10 रोज के दौरान नया कनेक्शन लगा दिया जाए। लेस्को में ओवर बिलिंग के मसाइल को कंट्रोल करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। करप्ट अमले के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। मुस्तकबिल करीब में लेस्को की पुलिस भी बनाई जा रही है। अवाम से अपील है कि वो बिजली के बिल बर वक्त अदा करें। देखें, बिजली का मामला जो है वो आपका लिंक्ड है फ्यूल प्राइसेस के साथ। आपके जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जो IMF है, उनकी शराइत के साथ भी लिंक्ड है। हुकूमत पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि इसके अंदर रिमार्केबल कमी लाई जाए और जल्दी लाई जाए। उसके लिए कोशिश जारी है कि जहाँ से सस्ता फ्यूल मिलेगा, जहाँ पे एनर्जी की कॉस्ट जो है वो जिससे रिड्यूस हो जाएगी, तो अल्टीमेटली उसका पहला जो फोकस होगा, पहला जो टारगेट होगा वो यही होगा कि बिल्स के अंदर कमी की जाए, टैरिफ के अंदर कमी की जाए। कमर्शियल टैरिफ है, डोमेस्टिक है, इंडस्ट्रियल है, तमाम टैरिफ जो है ना। आपके बढ़ते हुए आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में मकबरा नूरजहां और मकबरा जहांगीर के पास ग्रेटर इकबाल पार्क की तर्ज पर पार्क बनाने की तजवीज़ दी गई। वज़ीर आला मोहसिन रज़ा नकवी ने लाहौर वार्ड सिटी अथॉरिटी को तारीखी दरवाजों की बहाली के लिए टाइम लाइन देते हुए कहा कि लाहौर वार्ड सिटी अथॉरिटी के माहिरीन रिसर्च के बाद डिजाइनिंग और प्रोजेक्ट तैयार करें। टेक्साली, लोहारी, शाह आलमी, मोशी, दहली गेट और दीगर दरवाजों को मरहलावार प्रोग्राम के तहत असल हालत में बहाल किया जाए। मोहसिन नकवी ने तारीखी दरवाजों के इर्द गिर्द तजावुज़ात खत्म करने का हुक्म देते हुए कहा कि बिजली के तार को ज़ेर जमीन करने के लिए फौरी लेस्को से रुजू किया जाए। इजलास में डीजी लाहौर वार्ड सिटी अथॉरिटी ने तारीखी दरवाजों और कदीम इमारतों के बहाली के हवाले से वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी। इजलास में सूबाई वज़रा मंसूर कादिर, आमिर मीर, असफर अली नासिर, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सेक्रेटरीज खजाना, लोकल गवर्नमेंट, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, तामीरातों और मवासलात, कमिश्नर लाहौर डिवीजन, डिप्टी कमिश्नर लाहौर और मुतल्लिका हुकाम शरीक थे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर महकमा जेल खानाजात पंजाब का जेलों में मुकीद असीरान के फलाह बहबूद के लिए इनकलाबी इक़दाम किया गया। जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करने के हवाले से नई तारीख रकम हो गई। मुल्की तारीख में पहली मरतबा असीरान को ऑडियो कॉलिंग के साथ साथ अब वीडियो कॉलिंग की सहूलत शुरू कर दी गई है। डिस्ट्रिक्ट सेशन जेल लाहौर में पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की मुआवनत से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कैदियों के लिए वीडियो कॉलिंग का बाकायदा आगाज कर दिया गया। इस पायलट प्रोजेक्ट में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और तकनीकी पेचीदगियों की जांच के बाद पंजाब की बाकी जेलों में भी असीरान को वीडियो कॉलिंग की सहूलत फराहम कर दी जाएगी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम शकील अहमद मियां ने अपने सेंट्रल जेल दौरे के दौरान डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर में मुकीद 9 उम्र असीरान को पहली वीडियो कॉल करके वीडियो कॉलिंग की सहूलत का इफ्तिताह कर दिया। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।